as we now shift our focus to the latest developments. Now remember, Rajasthan government employee who's been arrested for spying for Pakistan. Another man in Punjab, his name is Gagandeep Singh. He had contacts with Pakistan's ISI and Khalistani terrorist Gopal Singh Chawla. Now, they've also been arrested for sharing sensitive army movement details to Pakistan agents. The accused has allegedly shared critical information about army movements with agents across the border for years, including during Operation Sindoor. Officials claim that Gagandeep Singh leaked sensitive classified information, including details of troop deployments and strategic locations, posing a serious threat to national security. Now, according to the cops, the mobile phone that was recovered from him revealed critical information about the intelligence he shared with his Pakistani agents, and he had over 20 ISI contacts. Now remember that these are developments that are happening, especially the latest that has come in from Punjab, Rajasthan and Jammu and Kashmir. These are men who have been pinned down for passing critical information to Pakistan. Let me take a look at the screen. Now this man, Shakur Khan, who is an alleged spy, he has been held in Jaisalmer in Rajasthan. Again, the similar charges that have been pressed against him of how he was providing critical information. Similarly, in Kangra in Himachal is this man. His name is Amit Bhardwaj. You see his picture. He is also an alleged spy. Jyoti Malhotra, the entire country knows of her, how she was using her YouTube channel as a travel vlogger. But what she was doing at the back of it was something entirely different. Arman, a man who's been caught in Nuh in Haryana, and his entire network has been busted. Similarly, Muhammad Ali, he's been caught in Jalandhar in Punjab. Now, all these people, some who were in touch with each other, some not, but they were in touch with ISI handlers. Shehzad, who was caught in Moradabad in UP. So you see the kind of nexus and how they have been held. Noman Ilahi, again a man, we've told you how he was caught in Kairana in UP. Ghazala, of course, we all know her story. She was promised that the man will get married to her, the ISI handler will get married to her. She has been held in Punjab, in Malarkota. Similarly, Yamin Muhammad, again an alleged spy who's been held in Malarkota in Punjab. The design was very clear. They were all being promised things to lure them to become Pakistani assets. Sukhpreet Singh, who was caught in Punjab. Karanveer Singh, another man who's been caught in Gurdaspur in Punjab. There you see in Amritsar in Punjab, Falak Sher Masi, an alleged spy. So all in all, there have been more than 15 arrests so far. Suraj Masi, who is again an alleged spy, he's been caught in Amritsar in Punjab. Some of their pictures that we have, and all of them who were primarily in touch with their ISI handlers. Now, some of them who were also passing on very critical information on Operation Sindoor, even when it came to the movement of our troops. Let me cut across to Arvind Ojha to get further details on how this spying has been busted so far and more information that has been coming in of how big this nexus was, especially focus being on the arrests that have been made in Punjab, Rajasthan and Jammu and Kashmir, because some of them who were working in government offices, they were privy to inside information that they were passing on. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इंडिया में जो आईएसआई के स्पाई हैं, इन पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हमारी एजेंसी का आप कह सकते हैं। और इसमें न सिर्फ यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अदर स्टेट से जो आईएसआई के लिए स्पाई करते हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जो फ्रेश अरेस्टिंग है वो आज मॉर्निंग में पंजाब के तरन तारण जो बॉर्डर एरिया है पंजाब और पाकिस्तान का, वहां से गगनदीप की हुई है। गगनदीप का जब मोबाइल सीज किया और उसका डेटा खंगाला गया तो उसमें पता चला कि गगनदीप 20 आईएसआई के एजेंट के कांटेक्ट में था और इसका हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद जो खालिस्तानी टेररिस्ट है गोपाल सिंह चावला था। गोपाल सिंह चावला ने गगनदीप की आईएस के एजेंट से कनेक्टिविटी करवाई थी। तो फिलहाल इससे पूछताछ चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी की जो लोकेशन है, जो उनकी मूवमेंट है, उसकी जानकारी गगनदीप आईएसआई एजेंट को दे रहा था। अब ये समझने वाली बात है कि अचानक से इंडिया के अलग अलग स्टेट से अरेस्टिंग क्यों हो रही है। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एजेंसी है वो काफी अलर्ट थी।
उस दौरान कुछ नंबर जो बंद थे अचानक से वो एक्टिवेट हुए और पाकिस्तान की साइड से इंडिया में अलग अलग लोगों को फोन कॉल आने लगे। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पाकिस्तान से जो फोन कॉल आ रहे थे वो इंडियन नंबर के ही थे, जिस पर एजेंसीज को शक हुआ और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान बात कर रहे थे उनको इंटरोगेट किया गया, जिसके बाद एक के बाद एक चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, गगनदीप हो, उसके अलावा जितने भी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से जो अरेस्टिंग हुई है ये सारे आईएसआई एजेंट के कांटेक्ट में थे। दरअसल पाकिस्तान से जब कुछ लोग इंडिया जाते हैं तो आईएसआई के एजेंट उनसे एक्टिवेटेड इंडियन सिम मंगाते हैं और फिर वहां से उन इंडियन सिम के जरिए जो पीआईओ हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, वो वहां से डीआरडीओ के साइंटिस्ट, जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, जो सीआरपीएफ के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रैप करते हैं। अभी ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले सीआरपीएफ का एक एएसआई अरेस्ट हुआ है जो पहलगाम में जिसकी पोस्टिंग थी। उसके बारे में जानकारी मिली कि वो 2023 से आईएसआई के जो ऑपरेटिव हैं उनको इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। तो एक के बाद एक एजेंट वो अरेस्ट हो रहे हैं। आज जो पंजाब से गगनदीप सिंह अरेस्ट हुआ है तरन तारण इलाके से, उसका हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद गोपाल सिंह चावला है जो खालिस्तानी टेररिस्ट है। जी जी अरविंद, पर जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से जो कुछ अरेस्ट हुए हैं वो उन लोगों के भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जिन्हें पकड़ा गया है, एक कांस्टेबल है, एक एजुकेशन स्टाफर है, एक टीचर है। साथ ही में बोला गया है कि इन्हें बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी। बॉर्डर के पास जिन लोगों को पकड़ा गया है वो ऑपरेशन सिंदूर की भी इंफॉर्मेशन आगे अपने आईएसआई हैंडलर्स को दे रहे थे। तो पाकिस्तान का जो एक ये नेटवर्क है एसेट्स क्रिएट करने का, लार्जली इसको बस्ट किया गया है कि किस तरह से वो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनसे अपना काम करवा रहे थे। देखिए, इसके लिए पीआईओ ने, जो आईएसआई ने, एक बकायदा कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें कई लड़कियां भी काम करती हैं। वो इंडियन सिम का मोस्टली इस्तेमाल करती हैं। इंडियन सिम वो जो पाकिस्तान से इंडिया भेजा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा के मेवात से कासिम नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। पहली बार जब वो ट्रिप पर गया पाकिस्तान तो आईएसआई के एजेंट ने उससे एक्टिवेटेड इंडियन सिम की डिमांड की। वो सिम पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद वहां से हनी ट्रैप किया जाता है कई बार, और जब एक बार कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल वो उसमें फंसता है तो फिर फंसता ही चला जाता है, उसके बाद फिर उनको पैसे भेजे जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली के जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, उन्होंने 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को नौकरी से बर्खास्त भी किया है। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एनआईए ने सीआरपीएफ के एक एएसआई को भी पकड़ा था, जो जिसकी पोस्टिंग पहलगाम में थी, जो वहां से सीआरपीएफ की जो मूवमेंट है, जो भी वीआईपीज आते हैं उनकी मूवमेंट की पूरी जानकारी आईएसआई को दे रहा था। तो दरअसल आईएसआई ने एक कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है, जिनका काम ही होता है इंडियन ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रैप करना और उनसे इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज काफी ज्यादा एक्टिव थी। पाकिस्तान से जो भी कॉल आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, उसके बाद उनको वेरीफाई किया गया, उसके बाद बैक टू बैक राजस्थान के बॉर्डर एरिया से, पंजाब के बॉर्डर एरिया से, उसके अलावा ज्योति मल्होत्रा की आप बात कर लीजिए, इस तरह से बैक टू बैक अरेस्टिंग हुई है। तो यानी जो आईएसआई का एक स्पाई रिंग है जो फैला हुआ है, को बस्ट किया है सेंट्रल एजेंसी। जी अरविंद ओझा, मेनी थैंक्स फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स।